مجھے فاریہ سے ہی شادی کرنی ہے، ارباز اپنی ماں کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ فاریہ کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، ماں غصے میں بولی۔ ارباز چیخو چلاؤ، شادی تو وہی ہوگی یہاں میں چاہوں گی۔ فاریہ ارباز کے ماموں کی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، ماڈرن بھی تھی، لیکن ماں کو پسند نہیں تھی۔ فاریہ اور ارباز ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، لیکن ضد ماں کی تھی، نہ جانے کیوں فاریہ کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ ارباز بینک میں جاب کرتا تھا، اس مائس نے گھر تنخواہ نہ دی۔ باپ نے پوچھا، ارباز بیٹا کیا تنخواہ نہیں ملی؟ اسما ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب میری اس گھر میں کسی نے سننی ہی نہیں تو تنخواہ نہیں ملنی۔ اصل میں اونچی آواز میں ماں کو سنا رہا تھا۔ ماں غصے سے بولی، رکھ لو پیسے، ہم کو نہیں چاہیے۔ تنخواہ جب تم نہیں کماتے تھے ہم کوئی بھوکے تو نہیں سوتے تھے۔ ارباز نے بابا سے بھی کہا، بابا جان آپ کہو نا ماما سے فاریہ کے لیے مان جائیں۔ بابا چاول والی تھالی نیچے رکھ کر بولے، او بھائی مجھے معاف کر، کیوں مجھے مروانا چاہتا ہے ماں سے؟ اپنی میں تو پہلے ہی شوگر گر مریض ہوں۔ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا حد ہوتی ہے، ویسے ڈرنے کی بھی۔ فاریہ بہت خوبصورت تھی، باتیں کرنے میں تیز، اور پھر ارباز کو محبت کا دکھ مل ہی گیا۔ فاریہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ ارباز تو کچھ دن خاموش رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی، گھر آتا اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ماں سمجھتی تھی کسی بات کا غصہ ہے۔ ارباز کو باپ کمرے میں گیا، ارباز بیٹا یا ناراضگی ماں سے ہے، باپ سے تو بات کر لیا کرو۔ چھوٹی بہن بھی آ گئی، بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہم سب سے بڑھ کر آپ کو فاریہ ہے؟ جو وہ نہ ملی تو ہم کو چھوڑ دیا۔ بہن پاس بیٹھ گئی، ہاتھ میں کھانے کو پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ ارباز نے بہن کی طرف دیکھا، چھوٹی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہن نے بریانی بنائی تھی جو ارباز کی فیورٹ تھی۔ ثمر بھرا ارباز کے منہ کے پاس کیا، بھائی منہ کھولو۔ ارباز نے منہ پھیر لیا۔ بہن نے ارباز کی طرف دیکھا، میری قسم ہے بھائی اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو آج۔ ارباز بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ پلیٹ ہاتھ سے پکڑی، ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے مجھے میری فاریہ کسی اور کو دے دی۔ بہن مسکرانے لگی، اللہ پہ یقین رکھو، اس نے تمہارے لیے کہیں کوئی فاریہ سے بھی پیاری اور بہتر بنا رکھی ہوگی۔ پھر دن گزرنے لگے۔ ارباز آفس سے لوٹا تو بہن ارباز کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ باپ ہال میں بیٹھا رسگلے کا ڈبہ سامنے رکھا ہوا چائے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ باپ کے پاس بیٹھ گیا، خیر تو ہے نا بابا، آج بڑے رسگلے کھائے جا رہے ہیں۔ باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، پتر اب پتہ چلے گا تم کو بھی بیوی ہوتی کیا بلا ہے۔ مجھے کہتے ہو نا بابا ڈرپوک، تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ اب ارباز چونک کر بولا، بابا میں سمجھا نہیں۔ بابا نے کچن کی طرف اشارہ کیا، بھئی وہ وزیر اطلاعات تمہاری ماں، اس سے پوچھو۔ مجھے بس رسگلے مل گئے، میں کھا رہا، باقی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر رسگلہ اٹھا کر منہ میں ہی ڈالا تھا کہ اب ماں کچن سے بولی، آ گیا میرا شہزادہ، پتر تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی کھانسنے لگا۔ ارباز باپ مسکرا کر بولا، کھاؤ کھاؤ رسگلے، ماما مجھے پوچھے بنا لڑکی پسند کر لیے کیا بات ہے؟ ماں نے گونجدار آواز میں کہا، بات کچھ بھی ہو، بس میں نے پسند کر لی۔ کیا ہوا ہے پیے، دین اسلام جانتی ہے، اسکول کا بھی شکل و صورت بھی پیاری ہے، سب سے بڑھ کر سمجھدار اور با اخلاق ہے۔ ارباز رسگلے کا ڈبہ بابا کے سامنے سے اٹھا کر بولا، زہر میری زندگی میں گھلے گا تو رسگلے آپ بھی نہیں کھائیں گے۔ باپ نے ارباز کی طرف دیکھنے لگا، یار اپنی ماں سے جھگڑا کر مجھے تم دونوں کے معاملے میں نہیں آنا۔ دیوار پہ لگی دادا جان کی تصویر کو دیکھ کر بولا، دادا جی اچھا ہوا آپ جلدی دنیا سے چلے گئے، ورنہ ایسا بیٹا جو بیوی سے اتنا ڈرتا ہو، اس کو دیکھ کر آپ ویسے ہی شرم سے مر جاتے۔ باپ ارباز کی طرف دیکھنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارباز بابا کی طرف دیکھ کر بولا، یار بابا مجھے نہیں کرنی شادی، اس لڑکی سے ماما سے بات کرو، آپ تھوڑی سی تو ہمت دکھا دو۔ باپ غصے میں آ گیا، اچھا یہ بات ہے، لے پھر جا کر ایک مرد کی زبان ہے، نہیں ہوگی شادی تمہاری اس لڑکی سے۔ ارباز بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، واہ بابا واہ، شاباش، جائیے آپ کرے ماما سے بات۔ باپ جوتا پہن کر کچن میں گیا، ارباز کی ماما سے کہنے لگا، بات سنو۔ ماما نے مڑ کر دیکھا، جی کہیے، خیریت ہے نا؟ وہ بات یہ کہ بیچارہ ارباز، ماما نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں کیا ارباز؟ وہ ارباز کہہ رہا ہے، بابا آپ شادی پہ پینٹ شرٹ پہننا۔ ماما مسکرانے لگی، عمر دیکھو اور شوق دیکھو، اب وہ 2 ہنڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا، مجھے دھو کر جلدی سے دے دو۔ ہاتھ میں دیگچی پکڑی بابا دھونے لگے۔ ارباز نے سوچا کافی ٹائم ہو گیا، لگتا بابا نے بات کر لی ہوگی۔ کچن میں گیا، دیکھا ماں کھانا بنا رہی ہے، بابا ہاتھ میں دیگچی پکڑے دھو رہے تھے۔ بابا نے ارباز کی طرف دیکھا،
मुंह फेर लिया। अरबाज पास जाकर बोला, बाबा थोड़ी सी तो इज्जत रख लें। माँ ने पूछा, बेटा अरबाज लड़की देख ली ना? अरबाज बात बदल कर बोला, बाबा रगड़ कर धोइए देखची, ये कहकर हॉल में जाकर बैठ गया। न चाहते हुए माँ ने जबरदस्ती शादी करवा दी। अरबाज की वो लड़की फारिया के जैसे वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन प्यारी थी। गंदुमी से रंग था, झील सी आंखें, शर्म हया वाली थी। दूल्हा बना हुआ था, मामा की तरफ देख रहा था। एक बात बता दूं, देखना तलाक देकर भगा दूंगा। 2 महीने में ही आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। माँ ने गुस्से से देखा, शर्म कर, बकवास करते हुए हया है आती कैसी बात कर रही हो? बेचारी इतनी अच्छी, इतनी मासूम सी है। मैंने लव मैरिज करनी है, अगर उसे तलाक भी ना दी तो एक और करूंगा, वादा रहा। अरबाज बेबसी में गुस्से में कुछ भी बोल रहा था। फिर बाबा की तरफ देखने लगा, एक ये देखो फ्री में मेरा बाबा लगा हुआ है। निकाह का वक्त हुआ, अरबाज और किंजा ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। निकाह हो गया, रुखसती हुई। किंजा का बाप फोत हो चुका था। माँ और भाई के साय में अलविदा हुई। पहली रात किंजा बेड पे बैठी हुई थी। अरबाज पास जाकर बैठा, घूंघट उठाया। माशाल्लाह हो तो प्यारी, लेकिन क्या फायदा। तकिया सीधा किया, सोचा किंजा मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। पहली रात थी, किंजा क्या कहती। अरबाज मोबाइल पकड़ा, गेम खेलने लगा। किंजा कुछ देर बैठी रही, फिर उठी, ड्रेस चेंज की, अरबाज के पास आकर बैठ गई। अरबाज इग्नोर किए हुए गेम खेलता रहा। किंजा ने धीमी सी आवाज में पूछा, आप मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे? अरबाज ने करवट बदली, खामोशी से मोबाइल रखा, उठा, लाइट बंद की, सो गया। किसी लड़की पे ये लम्हा, पहली रात और हम सफर का ऐसा रवैया बहुत दर्द देता है। किंजा भी पास लेट गई, आहिस्ता बोली, मैं पसंद नहीं हूँ आपको। मैं जब छोटी थी ना, बाबा कहा करते थे, बहुत प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला कोई शहजादा मिलेगा। मेरी बेटी को मुझे बाबा के वो अल्फाज याद हैं, आप ही मेरी दुआओं में मांगे गए वो शहजादे हैं। आप बात करें ना मुझसे। अरबाज सो चुका था। फजर की अजान होने लगी। किंजा उठी, वजू किया, नमाज पढ़ने लगी। अरबाज सोया हुआ था, नमाज अदा की, आवाज के सर से पे हाथ रखा, उठ जाइए। अरबाज ने गुस्से से देखा, मैं नहीं उठना, सोने दो मुझे। इतने में माँ के दरवाजे दस्तक दी। अरबाज उठ गया। वलीमा रस्म अदा हुई, जिंदगी अपने सफर पर चलने लगी। किंजा ने सारे कमरे में चीजें तरतीब से रखी, लेकिन अरबाज तंग करने के लिए सामान बखेर देता। किंजा खामोश रहती। एक दिन झाड़ू लगा रही थी, अरबाज कागज फाड़ फाड़ कर फेंकने लगा, फिर कहता सफाई भी करना नहीं आती। मामा कहती थी बड़ी समझदार काम वाली है। माँ देख रही थी। माँ गुस्से से बोली, क्यों तंग कर रहा है उसे, शर्म कर शर्म। उठाकर कमरे में चला गया। किंजा को आवाज दी, मेरा सर दबाओ। किंजा पास आई, अरबाज के पास बैठ गई, सर दबाने लगी, जोर से दबाओ ना। किंजा मुस्कुराने लगी, मुझ में इतना ही जोर है। अरबाज गुस्से में बोला, छोड़ो, जाओ मेरे कपड़े प्रेस कर दो। जानबूझकर सताता था। किंजा भी कभी किसी बात से इनकार ना करती। डिनर का वक्त था। आज खाने से खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। खाना खाने लगे। वाह वाह, क्या मजे के शामी बनाए हैं, और ये बिरयानी क्या कमाल की है। वाह, अरबाज तारीफें कर रहा था कि बहन बोली, भाई ये खाना आज भाभी ने बनाया है। अरबाज ने लहजा बदल लिया, इतना घटिया खाना आज तक नहीं खाया मैंने। बहन मुस्कुराने लगी, भाई बस करें बस। अरबाज का बहुत ख्याल रखती थी किंजा, लेकिन अरबाज कभी मोहब्बत भरा कोई लफ्ज ना कहता। उसे किंजा जानती थी, अरबाज मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन वो घर बसाना चाहती थी। 5 वक्त की नमाज अदा करती, घर के काम काज सब खुद करती। सास को माँ बना लिया, कभी थकन या गुस्से की शक्ल माथे पे ना आई। मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं, 2 दिन से कह रहा हूँ, क्यों नहीं धो रही तुम? किंजा प्यार से बोली, अरबाज आपके दूसरे सब कपड़े धुले हुए हैं, वो पहन लेना। वही एक ड्रेस ही पहना आपने। अरबाज गुस्से में चिल्लाया, जो मैं कहता हूँ बस वो किया करो। बस सर्दी की रात थी, धुंध छाई हुई थी। अरबाज गुस्से में बोला, जाओ अभी धोकर आओ। किंजा धीमे लहजे में बोली, अरबाज सुबह धो दूंगी ना। अरबाज गुस्से में था, तंग कर रहा था। किंजा उठी, ठंडे पानी से कपड़े वॉश किए, सर्दी से कांप रही थी। कमरे में आई, अरबाज सो चुका था। अरबाज ना प्यार से बात करता था, ना कोई मोहब्बत भरे कोई लफ्ज बोलता था, ना कोई हकूक अदा करता, बस रूखा सूखा सा लहजा रखता था। किंजा के साथ किंजा बर्दाश्त करती रही, खामोश रहती। वो जितनी भी थकी होती, नमाज की पाबंद थी, आंखों में हया और सब्र का दामन था, थामे रखती। अरबाज मुझे अम्मी के घर जाना है कुछ दिन रहने के लिए। अरबाज ने मना कर दिया, नहीं जाना, अब कोई एक लफ्ज ना बोलना। समझी किंजा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अरबाज कहाँ सुनने वाला था। इसकी बात अरबाज हॉल में बैठा था कि माँ पास आई, अरबाज बेटा छोड़ आना,
किंजा को सब कुछ दिन की माँ के पास रह लेती। अरबाज को बहुत गुस्सा आया जब माँ ने मना किया। जब मैंने मना किया है तो मामा से कहने की क्या जरूरत थी। कमरे में गया, किंजा कपड़े प्रेस कर रही थी। किंजा का हाथ पकड़ा, जोर से दबाने लगा। तुमको समझ नहीं आती, एक बार बात मैंने मना कर दिया, नहीं जाना तो मामा से कहने की क्या जरूरत है। किंजा दर्द से कराते हुए बोली, अरबाज दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज हाथ छोड़ दे। अरबाज ने गुस्से से पाँव बेड को मारा। बेड के किनारे पर पाँव लगने से जख्मी हो गया, खून बहने लगा। किंजा सहम गई। अरबाज इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? मैं तो कुछ गलत क्या भी नहीं, मैं माना कि नहीं बताया। वो फिर खामोश हो गई। बोलो क्या, वो तो बकवास करो। किंजा खामोश हो गई। अपना दुपट्टा अरबाज के पाँव पे रखा, यहाँ से खून बह रहा था। अरबाज गुस्से से बाहर चला गया। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। किंजा रोने लगी, काफी देर तक रोती रही। अरबाज, मेरे ये ख्वाब नहीं थे जो मेरे साथ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे तो मेरा कोई कसूर नहीं। किचन में जाकर खाना बनाने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुम गई नहीं? खुद संभालते हुए मुस्कुराने लगी। मामा 2-3 दिन बाद जाऊंगी। अरबाज कह रहे थे तनख्वाह मिल जाए फिर चले जाना। डिनर करते हुए मामा ने अरबाज से कहा, बेटा तुमने छोड़ आना था। किंजा को इसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनकर अरबाज शर्मिंदा सा होने लगा। कितना कुछ बोल दिया किंजा को, वो एक लफ्ज न बोली। डिनर क्या कमरे में गए तो कहने लगा, बैग पैक कर लो, कल छोड़ आऊंगा। किंजा मुस्कुराने ने लगी, नहीं अरबाज, फिर कभी चली जाऊंगी। अब बातें दर्द तो नहीं हो रहा। बाज सोच रहा था ये औरत का दिल भी कितना बड़ा होता है। मोहब्बत में निभा में सब दर्द भूल कर रिश्ता निभाने में हर हद से गुजर जाती है। लेकिन क्या करते हैं, वो किसी और लड़की से भी प्यार करने लगा था। किंजा के सामने बैठकर बातें करता, इस लड़की से दिल जलता तो था किंजा का, लेकिन क्या कहती इससे जिसने कभी मोहब्बत से बात करना तो दूर हाथ तक ना लगाया था। उसे इतना बेइज्जत करता था। बात में किंजा के वो रो पड़ती थी, लेकिन शिकवा ना करती थी। किंजा पास बैठी थी, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अच्छा जान, शादी पे क्या पहनोगी? फिर मैं तुमको सरप्राइज गिफ्ट दूं। बस हंस कर बातें कर रहा था गर्लफ्रेंड से। किंजा दूध सुन रही थी। गुस्से में तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेबस थी। बारिश हो रही थी बहुत तेज। किंजा बाहर जाने लगी। किंजा को बुखार था और अरबाज ने मना किया, किंजा बाहर पे ना जाओ, बुखार है। किंजा फिर भी जाने लगी। आपने गर्लफ्रेंड से बातें करनी है, सारी रात मैं बाहर सो जाऊंगी। किंजा बाहर जाने लगी। दानिश ने हाथ पकड़ा कर दबाया, सुनती नहीं हो तुम, यहीं लेट जाओ, बाहर ना जाओ। बारिश बहुत तेज, बुखार था किंजा को, लेकिन अरबाज को क्या परवाह थी। वो तो दूसरी शादी के ख्वाब देख रहा था। फिर एक दिन बाद हद से गुजर गई। अरबाज अपनी गर्लफ्रेंड से कहने लगा, मैं इस पागल औरत से जान छुड़ा लूं, बस फिर हम शादी कर लेंगी, तलाक दे देनी है मैं इसको। किंजा का सब्र खत्म हुआ। चीख कर अरबाज के हाथ से मोबाइल पकड़ा। इस लड़की को अल्लाह का वास्ता देकर कहने लगी, बहन मेरा घर ना बर्बाद करो, अल्लाह का वास्ता है तुमको, मैं बहुत दर्द सह रही हूँ। अरबाज ने किंजा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुमने मेरे हाथ से मोबाइल क्यों छीना? इतनी हिम्मत? किंजा कदमों में गिर करे, बाज क्यों करते हो आप मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे दर्द देते हो आप। आपसे कभी शिकवा भी नहीं किया, मैंने कभी कुछ मांगा भी नहीं, फिर क्यों अरबाज आप करते हैं ऐसा? अरबाज मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। अरबाज गुस्से से चिल्लाया, किंजा बस, मुझे तुमसे ना चाहते हुए भी नफरत है। कहा था माँ से मुझे ना करनी है इस लड़की से शादी, जबरदस्ती करवा दी। जाओ भाड़ में तुम। माँ भी शोर सुनकर आ गई। माँ की तरफ देखकर बोला, मैं उसे तलाक दे दूंगा, उसे भेज दो इस घर से। माँ गालियां देने लगी। अरबाज खुदा का खौफ करो, इतनी अच्छी लड़की को यूं रुस्वान ना करो। मैं सब देखती समझती हूँ जो तुम इस बेचारी के साथ करते हो। किंजा रो रही थी। अरबाज ने कहा, या तो ये रहेगी इस घर में या फिर मैं। माँ ने समझदारी से काम लिया। कुछ दिन के लिए किंजा को मैके भेज दिया। अरबाज को भी अकल आ जाएगी। किंजा रोते हुए चली गई। अरबाज के सामने जाते हुए हाथ जोड़ रही थी, तलाक ना देना। अरबाज कुछ दिन गुजरे। किस्मत ने खेल खेला। अरबाज बीमार रहने लगा। अरबाज को बहुत वोमिटिंग हुई थी, जो भी खाना खाता हजम ना कर सकता था। मैदे की कुछ प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर से इलाज करवाता, लेकिन हालात नए दिन के साथ बुरे होते जा रहे थे। वोमिटिंग से हालत बहुत बुरी हो गई, कमजोरी होने लगी। गर्लफ्रेंड छोड़ गई। माँ बीमार थी, भला बार बार कपड़े कैसे धोती। बहन की शादी हो चुकी थी। किंजा के साथ जो किया था, इसके बाद इससे क्या उम्मीद लगाना थी। कोई दवा असर ना कर रही थी। चरपाई पे पड़ गया। किंजा को पता चला, वो तड़पने लगी। नहीं कुछ भी हुआ, अरबाज हम सफर है मेरा। वो घर आई, देखा अरबाज का रंग पीला पड़ चुका था, अखियों ने घेरा हुआ था, सो रहा था बैठा, जिस समय बहुत कमजोर था।
माँ देख कर रोने लगी। बेटी देखना क्या हो गया है अरबाज को। किंजा ने हौसला दिया, मामा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। अरबाज ने आंख खोली, सामने किंजा थी। किंजा ने माथा चूमा, अरबाज पागल ये क्या हाल बना लिया है तुमने। अरबाज ने नजर ने नाम मिलाया, पा रहा था अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। जब भी अरबाज वॉमिटिंग करता किंजा अपने हाथ आगे कर लेती, फिर अरबाज का मुंह साफ करती, सर दबाती, हौसला देती, अरबाज आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पास बैठकर तिलावत करती रहती। किंजा ने बहुत केयर की अरबाज की और मौजज़ा हुआ कि अरबाज को शिफा होने लगी। डॉक्टर खुश थे, इतनी अच्छी बीवी है इसकी जो इसका इतना ख्याल रख रही है। किंजा की गोद में सर रखा, हाथ पकड़ा, होंठों के साथ लगाया, चूमने लगा, फिर चीख चीख कर रोने लगा। किंजा माफ कर दो मुझे, वो हाथ चूम रहा था। किंजा का हाथ जोर से पकड़ लिया, मुझसे दूर ना जाना किंजा, मैं कभी तुमको दुख ना दूंगा। किंजा की आंखों में आंसू थे। अरबाज मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा फर्ज है आपका ख्याल रखना। अरबाज कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। घर आ गए, किंजा खाना बना रही थी, किचन में आया, हाथ में गुलाब का फूल लिए किंजा को सीने से लगाया, फिर मोहब्बत का इजहार करते हुए गोल्ड रिंग पहनाई किंजा को। किंजा बहुत खुश थी। अरबाज बाहों में भर कर बोला, आज हमारी शादी को 2 साल हो गई। किंजा बर्तन धोने लगी कि अरबाज ने हाथ से प्लेट ले ली। नहीं किंजा मेरी जान, तुम माँ बनने वाली हो, थक जाती होगी, बर्तन में धो देता हूँ। किंजा ने मना भी किया लेकिन अरबाज बर्तन धोने लगा। देगची पकड़ी धो रहा था कि बाबा किचन में आ गए। देखकर मुस्कुराने लगे, वाह बेटा वाह, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर नो चल रहे हो। अरबाज कुछ कहना चाहता था कि बाबा ने कहा, पुत्र डर नहीं मोहब्बत होती है। ये अरबाज शर्माते हुए मुस्कुराने लगा। आज वो वक्त था, किंजा को सर दर्द भी होता तो अरबाज तड़प उठता। किंजा के बिना अब एक पल क्या, एक सांस ना ले सकता था। वही अरबाज जिसे नफरत थी किंजा से, आज किंजा के सब्र बर्दाश्त और निभा के इस मोहब्बत के सामने सर झुकाए सजदे में था। हर ख्वाहिश पूरी करता, बिन मांगे सब कुछ ला देता। औरत होना कोई मजाक नहीं है, औरत का दिल बहुत मार लहजे बर्दाश्त करके भी हम सफर के दौर बोल मोहब्बत के सुनकर सब दर्द भूल जाती है। आज भी न जाने कितनी किंजा किसी बेरहमा अरबाज की मोहब्बत को तरस रही है। अपनी हम सफर को वक्त इज्जत दे कर देखो, वो तुमको पलकों पे ना बिठा ले तो कहना, वरना तलाक देती जुबान और भौंकते कुत्ते तो जगह जगह मिल जाते हैं।